देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है, लेकिन अब कोरोना वायरस की वैक्सीन्स उम्मीद की किरण दिखा रही हैं। भारत की बात करें तो यहाँ वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हालात चिंताजनक हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 95 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 35,551 नए संक्रमित मरीज आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 95,34,965 हो गई है। हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि ऐसा कई दिनों से देखा जा रहा है कि देश में दैनिक मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में ही 40,726 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और इसी के साथ कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 89,73,373 हो गई है। वहीं देश में बहरहाल 4,22,943 एक्टिव केस हैं। उधर दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस केस के बीच सरकार की सतर्कता के कारण ये फिलहाल काफी हद तक काबू में होता नजर आ रहा है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आखिर जब दूसरे राज्यों में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली में भी अन्य राज्यों की तरह नाइट कर्फ्यू क्यों नहीं लगाना चाहिए। इस पर दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब देते हुए कहा है कि दिल्ली में फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। देश में बढ़ते कोरोना वायरस पर लगाम के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तमाम कोशिशें कर रही हैं। वहीं पीएम मोदी तो खुद कोरोना वायरस वैक्सीन पर चल रहे काम और उसके वितरण की तैयारियों को मॉनिटर कर रहे हैं। इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस महीने के आखिर से लेकर अगले महीने के शुरू में कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी मिल सकती है। So this is great news that one vaccine finally has been approved, and in such a short span of time, within 1 year. This is a big boost to all the vaccine manufacturers that the vaccine are being now approved and have a good chance of being available. In India, we have now vaccines which are in their final phase 3 trial, and both the Serum Institute of India and the Bharat Biotech vaccines are in their phase 3 trial. So we are very hopeful that by the end of this month or by early next month, we should get the emergency use authorization from the Indian regulatory authorities to start giving the vaccine to the public. And along with that, we will have our plan in place to distribute the vaccine to those who are to be given as the first priority. There is now good data that the vaccines are very safe. This has been something which has been monitored very, very closely. And although the vaccine development has happened at a rapid pace, this is being done by doing things parallelly, but safety and efficacy has not been compromised at all. Also, I think we must understand that if we look at all the vaccines that have been given in phase 3 trials, the number of people who have been vaccinated are almost 70 to 80,000 or even more. So if you look at that number, then we have not had any significant serious adverse effect as far as the vaccine is concerned, and therefore I think there is a lot of encouraging data that at least in the short term the vaccine is very safe. Long-term follow-up will happen over the next few months to years, and then we will be more comfortable in terms of long-term safety. इसके साथ ही रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन लगाने के 2 मकसद बताए हैं, जिससे कोरोना वायरस से निजात मिलने की उम्मीद की जा रही है। The vaccine will make a huge difference for the pandemic for 2 reasons. One is it will help to bring down the mortality. So once we are able to vaccinate the high risk groups and the elderly, I'm sure that they will be protected and the chance of the mortality will come down. Also, by vaccinating a sufficiently large number of people, we will be able to break the chain of transmission from one person to the other. And if we are able to do that, then the number of cases will come down and we will have a decline, a significant decline in the pandemic. And that will allow us to come back to a near normal situation. एम्स के निदेशक ने उस बात का जवाब भी दिया है कि आखिर क्यों अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से ये कहा गया कि देश में सभी को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, और ऐसे में कैसे कोरोना वायरस से जंग में जीत का सोचा जा रहा है। Whenever we are going to start vaccinating, obviously in the beginning vaccine will not be available in sufficient doses to give to everyone. So we will have to make a priority list. And our priority list is based on 2 things. One is to see that we vaccinate those who have a higher chance of dying because of COVID-19.
So people who are elderly, who have comorbid condition, should be vaccinated. Secondly, those who are the frontline workers, doctors, nurses, the ASHA workers, the police people, the CRPF, who are working in COVID areas for so many months and have a high risk of getting COVID because of the work that they're doing, to protect them, and they need to be vaccinated first. So a priority list will be made, and based on the number of doses that is available, the people will be vaccinated based on the priority list, and then gradually we will try and vaccinate more and more people so that the mortality is less and we have enough people vaccinated so that the chain of transmission of the virus is broken and therefore the cases dramatically come down. एक तरफ भारत में वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है और इमरजेंसी यूज की उम्मीद जताई जा रही है, तो दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के आदेश दे दिए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को रूसी अधिकारियों को अगले सप्ताह से कोविड-19 के खिलाफ सामूहिक तौर पर स्वैच्छिक टीकाकरण शुरू करने का आदेश दिया है और ये वैक्सीन होगी स्पुतनिक 5। वहीं इससे पहले ब्रिटेन ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में अगले हफ्ते से फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होगी। वहीं ब्रिटेन कोरोना वायरस की वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। उधर अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन को भी यूएस FDA और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी की ओर से जल्द ही आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने वाली है और अमेरिका में तो इसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अमेरिका कोरोना वायरस से दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 2713 लोगों की मौत हुई है। अप्रैल के बाद देश में एक दिन में कोरोना वायरस के चलते इतने लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मरने वालों की संख्या 2,73,316 हो गई है। वहीं अमेरिका में मरीजों की संख्या 1,39,16,500 से ज्यादा है। कोरोना वायरस से ग्रस्त 1,02,26 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि इनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा हुई है। ऐसे में यहाँ कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की मंजूरी बड़ी राहत साबित होगी। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण की वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।